سر اس کا مسیح سر تیرا سر تن سے جدا نہ کرنا سر تن سے جدا نہ کرنا آج کا پہلے سیشن کا آغاز کریں گے پیدائش کی کتاب دوسرا باب اور اس کی 18ویں آیت سے میں آپ کے لیے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کروں گا اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا اور خداوند خدا نے کل دشتی جانوروں اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا اور آدم کل چپاؤ اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا اور آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے کتاب مقدس کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو آج ہم چند باتیں ازدواج کی بابت سیکھیں گے پہلی بات بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے کائنات اور کائنات کی ساری چیزوں کو بنایا آپ جانتے ہیں خدا نے ہر چیز کو جتنی چیزیں ہیں روئے زمین پر خدا نے کہا ہو جا چیزیں ہو گئی خدا نے کہا آسمان بن جا آسمان بن گیا زمین بن جا زمین بن گئی خدا نے کہا مخلوقات بن جا مخلوقات بن گئی خدا نے سمندر کی مچھلیوں کو کہا کہ مچھلیاں پیدا ہو جائے مچھلیاں بن جائے تو مچھلیاں بن گئی خدا جو کہتا گیا چیزیں ویسی کی ویسی کیا ہوتی گئی بنتی گئی بالآخر خدا نے آدم کو کیسے بنایا یاد کر سکتے ہیں میں نے آج آپ سے سیکھنے کے لیے ہم جہاں جمع ہوئے ہیں یہ شادی کا جو منصوبہ ہے پلان ہے یہ سب کو پتا ہے خدا نے آدم کو کیسے بنایا یاد کر سکتے ہیں مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا تب وہ جا کر کیا ہوا جیتی جان ہوا اب جب آدم بن گیا ہوا بھی نہیں بنی ابھی آدم بنا ہے اور ساری مخلوق بن گئی آپ اس واقعہ کو یاد کریں کہ خدا نے جب پہلے دن چیزیں بنائی شام ہوئی تو صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خدا نے اپنی چیزوں پر نظر کی اور کہا ایڈا کو حال دی مسیحی ہو جی سر تے چک لیندے نے کہا اچھا ہے ویسے میں اس لیے مجھے ابھی راز کا پتا چلا ہے کئیاں بندیاں دی آواز اہلیہ کول بیٹھی ہوئی نکلتی ہوئی نہیں اس لیے آواز کٹ لو کچھ نہیں آخر گیا میری بھناں بہت اچھیاں نے کچھ نہیں کہن گیا اس لیے آواز تاری شاید باہر زیادہ نکلی ہو آواز نہ نکلے تو خداوند نے کیا کہا اچھا ہے دوسرے دن سب چیزیں بنانے کے بعد خداوند نے کیا کہا تیسرے دن ساری چیزیں بنانے کے بعد کہا چوتھے دن چیزیں بنانے کے بعد کہا پانچویں دن پھر خدا نے کیا کہا چھٹے دن پھر خدا نے کیا کہا ہر بار خدا کیا کہتا تھا لیکن بائبل میں لکھا ہے جب خدا نے آدم پر نظر کی تو کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں اچھی ہیں بنائی کس نے بنائی خدا نے تو اپنی بنائی چیزوں کو خدا کہہ رہا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اور اپنی بنائی ہوئی چیز کو آدم کو کہا اچھا آدم اچھا نہیں ہے باقی سب اچھا ہے میں شکر گزارا مردی سارے بولے نے
سارے مرد بولے نے، خواتین جو بولی کوئی نہیں. شکر ہے خداوندہ. آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. کیسا اچھا نہیں ہے؟ اکیلا رہنا آدم کا اچھا نہیں ہے. اب بائبل بتاتی ہے کہ اگر آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے تو خدا نے کیا کیا؟ خدا نے آدم کے ساتھ جو وجہ کیا تھی کہ خدا نے اسے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. بائبل کا ہم ورد کر کے گئے ہیں. بائبل میں لکھا ہے خدا نے جب ساری چیزیں بنائی تو آدم کے پاس لایا. ہاتھی کو آدم کے پاس لایا، چیونٹی کو آدم کے پاس لایا، بکری کو، بھیڑ کو، تمام جانوروں کو آدم کے پاس لایا، اور آدم نے ان کے شاباش آدم نے ان کے نام رکھے. لیکن بائبل میں لکھا ہے آدم کی مانند کوئی نہ ملا. سو خدا نے کیا کیا؟ خدا نے کہا کہ اب میں کیا کروں گا؟ اب میں آدم کی مانند بناؤں گا. پہلی بات اچھا کیا نہیں ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں آدم کھڑا ہے تو میں دی پیڑ نہ شادی نہیں کر سکتا. ہاتھی ڈفرنٹ. ہر چیز خدا نے جب دیکھی کہ یہ جتنے جانور ہیں میں کسی جانور نہ بیاہ نہیں کر سکتا تو اچھا نہیں ہے. خدا نے کہا اچھا میں جانوروں نہ شادی کی تھی آدم نہیں کراوا. تو خدا نے کہا کیا؟ میں اس کی شاباش میں اس کی مانند بناؤں گا. اس کا مطلب ہے جانوروں میں سے کوئی آدم کی مانند نہیں ہے. مرد جتنے ہیں خدا کا شکر ادا کرے، خدا نے ساڈا کوئی غلط بیان نہیں کر دیتا. یہ حقیقت ہے، مرد شکر ادا کرے. خدا نے کہا کہ مجھے ساری مخلوق میں سے آدم کی مانند کوئی نہیں ملا. جب نہیں ملا تو پھر خدا نے کہا بناؤ. کہا یہ گیا آدم کی مانند کوئی نہ ملا. تو خدا نے آدم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ خدا نے آدم کو سلایا، اور آدم کے سونے کے بعد خدا نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس کی ہڈیوں میں سے ہڈی کو اور گوشت میں سے گوشت کو لیا اور اس سے ناری کو بنایا. چند سال پہلے چند سائنسدانوں نے ایک تجربہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نر جو ہے، مرد جو ہے، کتنی دیر تک تنہا رہ سکتا ہے، اکیلا رہ سکتا ہے. اب انہوں نے تجربہ کیا، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، فوراً پیدائش کے فوراً بعد ایک ریسرچ ہے کہ اس بچے کو لیا گیا اور لے جا کر ایک ایسی جگہ پر رکھا گیا جہاں نہ کوئی عورت نہ کوئی لڑکی، کسی کی پرچھائی اس پر نہیں پڑی پیدائش کے بعد. اور یہ کافی عرصہ ہوتا گیا آخر کار وہ لڑکا جو ہے بالغ ہو گیا. جب وہ لڑکا بالغ ہو گیا تو سائنسدانوں نے کہا کہ اب ٹائم ہے ہم ایک تجربہ کریں. ہم یہ تجربہ کرتے ہیں کہ اس کے پاس سے ہم کچھ چیزیں گزارتے ہیں جو اس نے کبھی پہلے نہیں دیکھی. انہوں نے خوبصورت سی چیزیں کچھ گزاری. وہ لڑکا بڑا خوش ہوا، وہ نوجوان خوش ہوا. پھر کچھ اور گزارا، بڑا خوش ہوا. پھر اس کے بعد چند خوبصورت لڑکیاں اس کے سامنے سے انہوں نے گزاری. اب وہی سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ لڑکا چونک اٹھا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اب اسے پتا نہیں ہے کہ خاتون جو ہے، جو فیمیل ہے یا لڑکی ہے، وہ ہوتی کیسے. اس نے آج تک نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا. اس نے فرسٹ ٹائم زندگی میں وہ دیکھ رہا ہے کسی لڑکی کو. تو کہا یہ گیا کہ یہ ہے کیا؟ تو سائنسدانوں نے کہا کہ یہ بطخ ہے. لڑکی کو کہہ دیا یہ بطخ ہے. تو وہ لڑکا کہتا ہے یہ مینو بھی ایک مل سکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. سو بائبل بتاتی ہے، سائنس کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ آدم اکیلا نہیں رہ سکتا، یہ ناممکن ہے. سو خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور اس کی ہڈیوں میں سے ہڈی کو اور گوشت میں سے گوشت کو لیا اور اس سے ناری کو بنایا. اور جب ناری بنا لی گئی تو آدم کے پاس، آدم کے سامنے لائی گئی. اور آپ یاد کر سکتے ہیں کہ جب آدم کے سامنے ناری لائی گئی ہوگی، بائبل مقدس کے اندر لکھا، بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جب آدم ابھی سویا ہے اور سو کے اٹھا ہے تو خدا نے
हवा को पकड़ा और पकड़ के चलना शुरू कर दिया और चलते चलते आदम के पास लेकर आया। आप याद कर सकते हैं उस दिन को जिस दिन आप अपने निकाह के ओहद में बांधे जाने वाले थे, और निकाह के ओहद में जब आप बांधे जाने वाले थे, आप तन्हा अकेले हैं, गो सारी दुनिया आपके चारों तरफ है, लेकिन आप फिर भी अकेले हैं और उस जगह पर आप बैठे हैं, निकाह की सीट पर आप बैठे हैं, और उस सीट के ऊपर बैठने के बाद दूसरी सीट आपकी खाली रहती है। दूसरी सीट उस वक्त तक खाली रहती है जब तक बाप, तो जो फरमाइए, जब तक बाप अपनी बच्ची को पकड़कर निकाह के लिए उस सीट तक नहीं लेकर जाता। पादरी साहबान यहां काफी मौजूद है, खादम यहां मौजूद है। आप जानते हैं कि सीट के ऊपर बेटी को पकड़कर हमेशा बाप लेकर जाता है, और अगर खुदा ना करे किसी का बाप की फौतगी हो गई हो, फौत हो गया हो, सो गया हो, उसका बड़ा भाई उसको लेकर जाता है, मां लेकर जाती है। घर की जिम्मेदारी है कि अपनी बच्ची के निकाह के लिए उसको पकड़कर दुल्हा के पास, निकाह ख्वाह के पास लेकर जाए। खुदा ने यह मंसूबा बनाया कि जब आदम नींद से जागा तो खुदा ने आदम के सामने खुद हवा को पकड़कर लेकर गया, जैसे हम दुनिया के अंदर अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को पकड़कर, हाथ उसका पकड़ा होता है और हम आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते निकाह जहां हो रहा होता है वहां सीट के पास लेकर जाते हैं, और पास्टर पूछता है इस बच्ची को, इस बेटी को निकाह के लिए कौन पेश करता है? तो हम कहते हैं जनाब हम इसे पेश करते हैं। बैन ऐसे ही पहले आदम के सामने अगर किसी ने हवा को पेश किया तो पेश करने वाला उसका बाप यानी खुदा बाप है, और जमीन पर पेश करने वाला हमारा बाप होता है। आसमानी बाप ने हवा को पकड़ा और पकड़कर पेश किया कि ये मैं तुझे बख्शता हूं, मैं तुझे देता हूं। और इब्रानी बाइबल को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर इसका जो मफहूम है कि जब आदम ने हवा को देखा तो नहायत खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि उसकी दाढ़ें भी नजर आना शुरू हो गई। इतना खुश क्यों? उसकी मानिंद थी वो, इसलिए वो खुश हुआ, हो मेरे जैसी है। और उसने कहा ये तो मेरे साथ रही है, ये तो मेरे गोश्त में से गोश्त और मेरी हड्डियों में से हड्डी है, इसलिए ये क्या कहलाएगी? नारी। क्योंकि ये नर में से निकाली गई है, इसलिए ये नारी कहलाएगी। और खुदा ने पहली मर्तबा दोनों को इकट्ठा किया, दोनों को खड़ा किया, खुदा औरत का खुद बाप बना। बहनों, बेटियों, जब आपकी शादी होती है तो आप कई मर्तबा ये समझती है कि मैं तो अपने बाप के घर से रुखसत हो रही हूं, लेकिन आपको यह शायद मालूम नहीं कि आसमानी बाप आपका हाथ पकड़कर बेटे के हाथ में दे रहा होता है। आपका बाप शायद आपको छोड़ जाए, भूल जाए, लेकिन आसमानी बाप आपको आपके ससुराल में भी नहीं भूलेगा। वो आपके ससुराल में भी आपको नहीं भूलेगा, क्योंकि वो खुद हाथ पकड़कर उसने रिश्ता बनाया है। मियां बीवी का रिश्ता बनाने वाला खुद खुदा है, उसने हाथ पकड़ा है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, इसलिए उसने कहा मर्द का अकेला रहना अच्छा, इसको अकेला क्यों रखा जाए, क्यों ये अकेला रहे? इसके लिए मददगार होनी चाहिए, ताकि ये तमाम मुआमलात में, देखिए कितने मुआमलात में मर्द अकेला काम कर सकते हैं। अकेला काम बड़े सहाना मर्द आंदा मैं कमांदा नहीं, बड़े सहाना आंदा मैं कमांदा नहीं। कमाता कब है वो? घरों चैन मिलेगा तो कमाएगा ना जी, घर से सुकून होगा तो कमाएगा ना। अकेला मर्द अगर कहता जी मैं ये कर रहा हूं, कोई अकेला मर्द काम नहीं कर सकता जब तक उसके पीछे औरत ना हो। खुदा ने औरत को एसोसिएट बनाया है, उसके लिए, उसको अकेला रहने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि उसको एक मददगार दिया है, ताकि वो ना तो नेगेटिव सोच सके, ना को उसकी ख्यालात मुंतशिर हो सके। जब वो प्रॉब्लम के अंदर आए, जब वो मुश्किल के अंदर आए, जब वो तंगी के अंदर आए, जब वो मुसीबत के अंदर आए, तो उसकी मानिद जो है उसकी मदद कर सके। इसलिए औरत को बनाया है खुदा ने।
خدا نے عورت کو صرف اس لیے بنایا ہے کہ اس کی مدد کر سکے، اس لیے خدا نے آدم کو اکیلا نہیں رکھا، اور اس کی جسمانی مدد وہ کرتی ہے۔ عورت جو ہے مرد کی جسمانی مدد کرتی ہے، مرد کی روحانی مدد کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کئی مرد ہیں جنہیں روحانی مدد کی ضرورت ہے، جسمانی مدد کی ضرورت ہے، معاشی مدد کی ضرورت ہے، ذہنی مدد کی ضرورت ہے، معاشرتی مدد کی ضرورت ہے۔ ہر طرح کی مدد جو ہے وہ عورت مہیا کرتی ہے اگر اس کو ساتھ کھڑا کیا جائے تو۔ عورت کیا کسی سے کم ہے جی؟ کیوں بہنوں، عورت کم ہے کسی سے؟ خدا نے بنایا کیسا ہے عورت کو؟ ایک اور سوال اب میں آپ سے کر رہا ہوں، اب آگے بڑھنے والا ہوں میں سوالات کی طرف۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے، کیا مرد اونچا ہے یا عورت اونچی ہے؟ میں قابل نہیں کہہ رہا ہوں، ان میں سے بڑا کون ہے؟ ان میں سے دونوں کا رتبہ کس کا بڑا ہے جی؟ کس کا؟ مرد کا؟ عورت کا؟ برابر؟ کیا یہ دونوں میں سے رتبہ بڑا کس کا ہے؟ خدا نے دونوں کو یکساں برکت دی، دونوں بنائے کسے گئے ہیں؟ مٹی سے بنائے گئے، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ دونوں کو خدا نے ایک دوسرے کی ضرب ساتھ رہی ہے، خدا نے دونوں کو ایک دوسرے کی مانند بنایا ہے، ایک دوسرے کی مانند بنایا ہے۔ کیا مرد کے اندر جتنی سوچنے کی قوت عورت کے اندر بھی ہے؟ اور آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کی کوئی ایسی فیلڈ بتائے جس میں عورت کام نہیں کر رہی، عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں اور برابر کام کر رہی۔ اس لیے خدا نے مرد کو ایسوسیٹ دی ہے، معاون ہے، مددگار دی ہے، تاکہ وہ کیا کر سکے؟ مدد کر سکے۔ یہ تو تھا شادی کا منصوبہ جو مرد اور عورت کے لیے ایکول خدا نے تیار کیا، بنایا، سمجھ ایکول دی، ذہن ایکول دیا، سوچ دی خدا نے، اعضاء جسم کے ایکول بنائے، ہر چیز خدا نے ایکول کر کے دے دی انسان کو، دونوں کو بخش دی۔ تمہاری سوچ، تمہارا خیال، تمہارے احساس، تمہارے جذبات، جو کچھ ہمارے اندر ہے وہی عورت کے اندر ہے، جو مرد کے اندر احساسات ہے وہی ہے، جو جذبات ہے، جو محبت ہے، جو پیار ہے، جو الفت ہے، دونوں کے اندر خدا نے اپنی شبیہ رکھی۔ لکھا ہے خدا نے مرد اور عورت کو اپنی شبیہ پر، میں ساتھ رہی، خدا نے کس کی شبیہ پر پیدا کیا؟ مرد اور عورت کو کس کی شبیہ پر پیدا کیا؟ اپنی شبیہ پر۔ تو خدا کی شبیہ، خدا کی محبت، خدا کی الفت، خدا کی سوچ، ہر وہ جو چیز خدا کے اندر پائی جاتی ہے خدا نے یکساں دونوں کے اندر رکھی ہے۔ ڈنڈی خدا نے نہیں ماری، خدا نے دونوں کے اندر یکساں رکھی ہے اور دونوں کو اکٹھا کھڑا کیا ہے۔ یہ نہیں آکھے کہ پہلا آدم کو برکت دا پھر حوا دا، خدا نے دونوں کو کیا دیا ہے؟ اکٹھی برکت دی، اور خدا نے دونوں کو اکٹھی برکت کیا دی؟ بڑھو، پھلو، پھولو، اور زمین کو معمورو، محکوم کرو، اور اس پر غالب آؤ۔ کتنوں کو کہا؟ مرد کو یا عورت کو کہا غالب آؤ؟ دونوں کو خدا نے ایکول کہا کہ دونوں غالب آؤ۔ اب جب خدا نے یہ منصوبہ دے دیا کہ میں مرد کو اکیلا نہیں رہنے دینا چاہتا، میں اس کے لیے مددگار بناؤں گا، میں اس کی مانند ایک عورت بناؤں گا جو اس کو اسسٹ کرے، جو اس کی مدد کرے۔ شادی سے پہلے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جذبات ہے۔ دیکھیے دونوں کے، میں نے آپ کو بتایا ایکول جذبات پائے جاتے ہیں، ان کے اندر احساسات ہے، جذبات ہے، سوچ ہے، خیال ہے۔ شادی سے پہلے ہر انسان، پنجابی جو ہے واہ چڑھتا ہے، اور اکثر آپ نے ایک سٹیٹمنٹ سنی ہے، لو از بلائنڈ، محبت، ذرا میرے ساتھ رہی، محبت، میں وہ بھی تمہیں فکرے سنانے نا، ٹرکا پیچھے لکھے ہوتے ہیں، میرے نال بول چھڑو۔ محبت کیا ہوتی ہے جی؟ اور اس اندھی محبت کے اندر بندہ بڑا جذباتی ہوتا ہے جی، میں یہ بغیر رہ ہی نہیں سکتا، دل کرے اپنا خون ہی کرتا پھر ہے۔ میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں، جب نوجوانوں کی میں کاؤنسلنگ کرتا رہا، یوتھ کی کاؤنسلنگ کی، میرے دیکھنے میں آیا، مشاہدے میں آیا کہ محبت کے اندر اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں لوگ، اتنے، اور یہ ایک جبلی حقیقت ہے، یہ ہمارے خون کے اندر ہے محبت۔ یہ جو
ہماری محبت ہے، میاں بیوی کی محبت ہے، یہ خون کے اندر ہے اور یہ خدا نے خود ڈالی ہے. یہ تو انکار کوئی نہیں کر سکتا، کوئی مذہب بھی انکار نہیں کر سکتا، کوئی فرقہ انکار نہیں کر سکتا، کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ محبت خدا نے خود ڈالی ہے، یہ خدا نے خود اندر رکھی ہے. اور دوسرے لفظوں میں خدا نے اس جسم کو اسی مقصد کے لیے تیار کیا، محبت دی، پروان چڑھایا. اب یہ جب ہماری زندگیوں کے اندر امٹتی ہے، بڑھتی ہے، تو یہ ایسے ایسے کارنامے سار انجام دیتی ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ کسی کو کوئی شخص پسند کرتا ہے، جی میں تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو شادی سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جذبات فرق ہوتے ہیں. شادی سے پہلے اس لڑکی کے لیے یا لڑکے کے لیے بڑے بڑے روزے رکھے جاتے ہیں. میں اکثر ٹیلی فون کال مجھے محسوس ہوتی ہے، جی بھائی صاحب ہمارے لیے دعا کریں. جی کی مسجد ہے وہ میری، جی جہاں شادی میں کرنا چاہتی ہوں جی وہ ہو نہیں رہی، تو آپ دعا کریں. میں تو اتنے روزے بھی میں نے رکھے ہیں، میں تو اتنی چرچ بھی جاتی ہوں. مردوں کا بھی یہی حال ہے، لڑکوں کا بھی یہی حال ہے. لڑکے بھی یہی کہتے ہیں جناب ہمارے لیے ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا جس لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس سے ہم کسی نہ کسی طریقے سے شادی کریں. پھر اس شادی کرنے کے اندر جو جذبات آ جاتے ہیں، ذرا میرے ساتھ رہیے، میں مختصر سی بات آپ سے کر رہا ہوں. وہ جو جذبات آ جاتے ہیں وہ جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان خدا کے قریب اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اس کی محبت میں قید ہو چکا ہوں، میں اسے شادی کروں گا. اور شادی کرنے کے لیے پاوے میں روزے رکھنے پہ، چاہے مجھے کوڈیوں کے بال مریم آباد کیوں نہ جانا پڑے، چاہے مجھے دوپٹے کیوں نہ چڑھانے پڑے، چاہے مجھے دیگے کیوں نہ بانٹنی پڑے. اور کئی لوگ جب ناکام ہو جاتے ہیں، جی شادی نہیں ہو رہی، شادی نہیں ہو سکتی، تو اپنے جسم کے اندر سے خون نکالنا شروع کر دیتے ہیں. جی دیکھو جی اپنے جسم سے خون نکال کے حصوں کو کاٹتے ہیں. اور پھر کئی مرتبہ لوگ غلط میڈیسن ینگ لڑکے استعمال کرتے ہیں، لڑکیاں استعمال کرتی ہیں، خودکشیاں کرتی ہیں. یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں ہر روز ٹیلی ویژن چینل پہ آپ دیکھتے ہیں. یہ جتنی میں نے آپ سے گفتگو کی ہے ہر روز ٹی وی میڈیا آپ کو یہی دکھاتا ہے کہ فلاں شخص نے خودکشی کر لی، فلاں لڑکی نے خودکشی کر لی، فلاں لڑکے نے. اب میں صرف یہاں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جو شخص اپنے جسم سے محبت نہیں کر سکتا وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں؟ جو شخص اپنے جسم سے محبت نہیں کرتا، اینو کٹنا پھرتا ہے، اس سے خودکشیاں کرتا ہے، اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں؟ جو اپنے سے محبت نہیں کر سکتا وہ کسی سے محبت کیا کرے گا؟ یہ ایک جبلی عنصر ہے جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے، یہ ہماری وراثت کے اندر ہے کہ ہم دوسری جنس کی جانب ہماری رغبت ہے. اور بائبل میں بھی لکھا ہے کہ مرد کی رغبت عورت کی طرف اور عورت کی رغبت مرد کی طرف ہے. یہ رغبت ہے اور یہ ہماری جبلت کے اندر ہے اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے، ہر طور پر یہ ہمارے پاس ہے. تو جب شادی ہو جاتی ہے، شادی سے پہلے بہت کچھ ہم کرتے ہیں، اتنے محبت میں ہو جاتے ہیں، میں تیرے لیے خودکشی کرنے کو تیار ہوں، میں تیرے لیے مرنے کو تیار ہوں، میں نہیں تو میرے ساتھ شادی کرے گی، میں خودکشی کر لوں گی، میں چھلانگ لگا کے مر جاؤں گی، میں سوئسائڈ کر لوں گی. بہت دھمکیاں ہوتی ہیں اور کرتے بھی ہیں. تو کیا ہم اسے محبت سمجھتے ہیں؟ چلے میں سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہوں آپ کے لیے، کیا یہ محبت ہے؟ اب جب شادی ہو جاتی ہے، شادی سے پہلے گھر والے جاتے ہیں، جناب ہم اپنی بیٹی کو منگنی ہوئی ہے تو ہم دینے چیزیں جا رہے ہیں. مرد جو ہے، لڑکا جو ہے وہ بھی بڑے تحائف بھیجتا ہے، تحفے بھیجتا ہے، ٹیلی فون کالز کرتا ہے، ایس ایم ایس کرتا ہے، محبت نامے بہت سے دیے جاتے ہیں. کس لیے؟ کہ میں محبت کرتا ہوں بہت زیادہ اپنی مخالف جنس سے، لڑکی سے یا لڑکے سے، میں یہ محبت کرتا ہوں اور اس محبت کا اظہار تحفے تحائف بے شمار. لیکن سوال یہاں یہ ہے، جب شادی ہو جاتی ہے، جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اب سے تم دو نہیں بلکہ ایک ہو، تو پھر میاں بیوی اپنے گھر میں زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں. کتنی دیر بعد جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں؟
अंदाजन कितनी देर बाद झगड़े शुरू हो जाते हैं? अच्छा चले, एनी हो, फिर वही शादी जो मोहब्बत के लिए अपनी जान देने को तैयार है, फोन जान लैन तैयार होता है। आप वही शख्स जो पहले कहता है कि तू मेरे साथ शादी नहीं करेगी या नहीं करेगा, मैं जान दे दूंगी या दे दूंगा, फोन जान ले लेगी या ले लेगा, यहां तक तैयार हो जाते हैं। उसकी वजह आज हम उन वजूहात पे गौर करेंगे। क्या वजह है कि खानदान अभी बनते हैं और फिर बिखरना शुरू हो जाते हैं? पहले मोहब्बत जो एक्सट्रीम पर है, बहुत बुलंद है मोहब्बत का मेयार, जैसे निकाह के अंदर आ जाते हैं तो क्या मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है या मोहब्बत कम हो जाती है? आज हम इन निकात पर बात करेंगे, इन चीजों पर आज हम सोचेंगे। क्या जब शादी से पहले हमारी मोहब्बत थी वो क्या थी, और शादी के बाद हमारे साथ अब क्या हो रहा है? बाइबल मुकद्दस के अंदर चंद असूल है खुशगवार जिंदगी गुजारने के, और मैं 7 असूल आपको बताऊंगा खुशगवार जिंदगी गुजारने के। मियां बीवी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप में से कोई ऐसा जोड़ा यहां है जो कभी जिंदगी में लड़ा नहीं? जो लड़े नहीं कभी, बोल रहा हाथ दिखाए जो लड़े नहीं कभी। कुछ साल पहले मैं एक सेमिनार पढ़ा रहा था मियां बीवी का। मैंने सवाल किया, सुनिए, मैंने सवाल किया लड़े आपकी क्यों लड़ाई नहीं हुई? तो वही सवाल आज मैं रिपीट करता हूं, क्यों लड़ाई क्यों नहीं हुई? कोई जवाब दे जोड़ा, लड़ाई क्यों नहीं हुई? जरा बुलंद आवाज से जवाब दे ताकि आप सब सुन सके। कभी हम दोनों में कोई मसला हुआ है, किसी बात पे मैं अपनी मिसेस से नाराज हूं, तो जब मैं उससे गुस्से होता हूं तो वो मेरी बर्दाश्त करती है। जब मैं उससे कोई बात कहता हूं तो वो मेरी बात को बर्दाश्त करती है, और जब उसको किसी बात पे मुझ पे गुस्सा होता है तो फिर मैं समझ आता हूं कि अब वो गुस्से में है, फिर मैं उसको बर्दाश्त करता हूं। कोई और जोड़ा तजर्बा बताना चाहता है जैसे कभी जिंदगी लड़ाई नहीं हुई? बड़े खुशकिस्मत जोड़े हैं जी ऐसे जिनकी कभी जिंदगी में झगड़ा नहीं हुआ। कोई जोड़ा कोई है, कोई बताना चाहता है? जी आज पहले आप जी। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। हमारी जिंदगी हमारे महल्ले में मिसाल है। अगर पर साहब को गुस्सा आता है तो मैं खामोश हो जाती हूँ, अगर मुझे गुस्सा आता है तो पर साहब खामोश हो जाते हैं। अगर जो बच्चों की तरफदारी हम नहीं करते, क्योंकि वो बाप हैं, वो भी जानते हैं ये मेरे बेटियां बेटे हैं, और अगर मैं जानती हूँ ये मेरे बेटियां बेटे हैं, तो इसीलिए हम एक दूसरे पर, जब को बच्चे पर को गुस्सा आता है तो हम एक दूसरे बच्चे की भी तरफदारी नहीं करते। जी मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरी शादी को तकरीबन 18 साल हो गए हैं। पहले दिन से मैंने अपनी बीवी को समझाया कि देखें हम दोनों एक हैं, आगे हमारे बच्चे होंगे, अगर हम अपने घर में लड़ेंगे या कोई ऐसी बात होगी तो इसका बुरा असर हमारी बच्चों पर आएगा। तो ऐसा कभी 18 साल के अंदर कभी नहीं हुआ। 5 मेरी बेटियां हैं, बड़ी बेटी मैट्रिक में है, छोटे बच्चे हैं, 2 मेरे बेटे हैं, और ये एक मेरी जिंदगी की मिसाल है कि कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि हम लड़े हों। हमारे किसी पड़ोसी ने सुना कि पादरी साहब लड़ रहे हैं, ये खुदा का बड़ा शुक्र है। कोई और जोड़ा सिर्फ 1 मिनट के लिए, कोई और जोड़ा जिसके घर कभी लड़ाई नहीं हुई, आज दिल ना आगे गल कर ले। आगे फिर चंद बातें मैं आप अजी आजे जल्दी आ जाए जी, मैंने इसलिए मौका दिया। मैं जब भी अपनी बीवी पर गुस्सा होता हूं तो वो कहती है कि आपने बाइबल पर हाथ रखकर मेरे साथ अहद किया है कि आप मेरी बर्दाश्त करेंगे और मैं आपकी बर्दाश्त करूंगी। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। 25-26 साल हो गए हैं शादी को जी, कभी लड़ाई नहीं हुई। मेरे सबका सलाम। थैंक यू वेरी मच, जोरदार तालियां बजाएं जी, दिल खोल के बजाओ तालियां। अच्छा मैं अब आपसे एक सवाल करने लगा हूं, असी सारे पागल ही हैं जिहड़े लड़ते रहने हैं? देखिए अच्छा अब वो हाथ उठाए जो लड़े हैं कभी। मैं 2 इसलिए उठाए ताकि तुहानू हौसला होए। एक बात मैं आपको बताऊं,
जिंदगी में मैं मुआफी के साथ कहता हूं जितने जो लोग यहां आए मुआफ कीजिएगा मुझे, मैं जो यूनिवर्सल हकीकत है वो बताने लगा हूं। जिंदगी में कभी 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 कोई ऐसा जोड़ा नहीं जिसका झगड़ा ना हुआ। अब ये झगड़ा होता क्या है, ऐसा सुन लो पहले। अच्छा, मैंने सवाल किया अपने एक सेमिनार में, मैंने कहा जी बताएं जिसका झगड़ा नहीं हुआ। तो जिस तरह आप उठ के आए हैं, एक जोड़ा आ गया उठ के, मैंने कहा जी आज मुझे राज बताएं झगड़ा हुआ क्यों नहीं। राज क्या है कि झगड़ा हुआ क्यों नहीं। कहता जी बस नहीं हुआ। फिर आखिरकार बात निकलते निकलते बात यहां तक पहुंची कि जब नई नई शादी हुई तो शादी के पहले दूसरे महीने में हमारा झगड़ा हुआ। तो जब छोटा सा झगड़ा हुआ, तो जब झगड़ा होता है तो मैंने किया क्या, चौहां दी आगे बल रही सी, एक चो कढ़िया, इनू दबल कुटिया। लो जी, उस तो बाद हुण असीं बुढ़े होने, लड़ाई नहीं जी हुई। मैं कहा लड़ाई तो फिर हो गई ना, जो तो बीवी ते प्रेशर ही इन्ना पाई रखे, लड़ाई कादी होनी उथे। मैं लड़ाई का मकसद ये नहीं है कि भांडे टुटने वाली लड़ाई, लड़ाई का मकसद ये नहीं है कि गुआंढी सुन लड़ाई। लड़ाई तो तुम्हें पता है कि मिनट च हो जाती है मियाँ बीवी की। अच्छा मैं जिथे क्यों पिया, मेरे होने तक सफाई क्यों नहीं हुई। तो ये एक फितरती अमल है, ये एक फितरती अमल है कि दो ज़हन है, ये आपस में हम महंगी इनकी आनी है, इनके अंदर मुशाबत लाते लाते टाइम लगता है और फिर झगड़े, छोटे छोटे इख्तलाफात होते हैं। आप शायद झगड़े वो समझ रहे हैं जिससे तलाक होगा, ये होगा, वो मैं बात नहीं कर रहा, मैं छोटे छोटे इख्तलाफात की बात कर रहा हूं। जो इख्तलाफात है ये झगड़ों का सबब बनते हैं। खुदावंद का शुक्र है जितने जहां जोड़े आए हैं, मैं उनके लिए खुदा का शुक्र करता हूं कि उनके झगड़े वैसे नहीं हुए, मार कुटाई वाले नहीं हुए, लेकिन इख्तलाफात तो होते ही हैं। फिर अब दो खानदानों, आप एक खानदान से बहू बेटी एक खानदान से दूसरे में जाती है तो वहां अडॉप्ट माहौल करने के लिए टाइम लगता है, एक टाइम लगता है, और उस टाइम तक कौन जी बंदा फारग हो जाता है। कितने हैं जिनकी शादी पुरानी हो गई है, जहां पुरानी जिनकी शादी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काफी जोड़े हैं जी। अच्छा, इनकी शादी पुरानी हो गई है। अच्छा, पंजाब में, हमारे पंजाब में अक्सर, मैं याद है मुझे एक वाकया मुझे याद है, मैं एक जगह पर कलाम सुनाने गया, ये कुछ साल पहले का वाकया। मैं एक जगह कलाम सुनाने गया तो खाना खाने बैठे हुए थे, तो एक बहुत ज़ईफ खातून ने आवाज दी, वोटी रोटी लैके आ। तो थोड़ी देर बाद जो वोटी आई तो वोटी के मुंह च एक दंद नहीं साजन, वोटी के मुंह च एक दंद नहीं सी। ते आवाज की आई, वोटी रोटी ते लैके आ। सस बुला रही है नूह नू, ना सस दे मुंह च दंद ना नूह दे मुंह च दंद। शादी पुरानी हो गई, शादी पुरानी हो गई। आपकी सोच पुरानी होती है, शादी कभी पुरानी नहीं हुई, शादी कभी पुरानी नहीं हुई। ये सोच ले, आपकी शादी कभी पुरानी नहीं हुई। और जब आप सोचना शुरू कर देते कि शादी पुरानी हुई, उथे तुसी उंजी फेल हो जाते। इसलिए शादी कभी पुरानी नहीं हुई। और ये तो हमारे पंजाब की कल्चर है कि बहू के मुंह में दांत नहीं, ओनू भी की बुलाने आ, जरा उची बोलो, ओनू की बुलाने आ। ते जिदे पहले दिन निकाह होया ओनू की बुलाने आ, ते जदों ओ वोटी दी जनाजा जा रहा होंदा तां वोटी मर गई है, हालां ओदे अगों दे पोतरे होंदे ने। शादी कभी पुरानी नहीं हुई। आइए मैं चंद निकात आपके सामने रखने लगा हूं। पहला नुक्ता जो है जिस पर हम बात करेंगे वो ये है, पैदाइश की किताब 2 बाब 24वीं आयत। पैदाइश की किताब 2 बाब 24वीं आयत में लिखा है, मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से, मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। सवाल यहां यह पैदा होता है, जो मैं आपसे सवाल करने लगा हूं, सबसे सवाल यहां यह पैदा होता है कि लड़की ही घर को क्यों छोड़ती है, लड़का क्यों नहीं छोड़ता। हमारे मुआशरे में लड़की घर को छोड़ती है, लड़का क्यों नहीं छोड़ता। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मुझे जवाब दीजिए। लड़की ही घर को क्यों छोड़ती है, लड़का क्यों नहीं छोड़ता, जबकि आपने शुरू में कहा था कि दोनों बराबर हैं। वो कभी लड़की ने बरात लैके जाती है किसी ने, लड़का ही लैके जाना क्यों जी। आगे 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 जवाब दे, क्या वजह है कि लड़की ही घर को छोड़ती है।
क्या वजह है कि लड़की ने ही घर से विदा होना है? सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेरे घर में बहू है वो खुद अपने माँ बाप को, रिश्तेदारों को लेकर मेरे घर में आई। हमने उन्हें इनवाइट किया कि ये शादी मेरे घर में होगी, और मैं बताता हूं कि मेरे घर में मेरी बहू खुद माँ बाप के साथ, सबकी रजामंदगी के साथ आई, और ये बात साबित है। आमीन। वजह क्या है? मैं आपसे वजह पूछ रहा हूं कि क्या वजह है कि सिर्फ बेटियां ही, जिसको इतने नाजों से हम पालते हैं, परवरिश करते हैं, और जब वो जवान हो जाती है तो दूजे का टोर दे दिए। उन्होंने रहमो करम थे। मेरे साथ रहिए। क्या वजह है हमारे मुआशरे में कि जब हम अपनी, सबके खुदावंद ने औलाद जैसी नेमत दी है, हमारी बेटियां पैदा होती हैं, हम उन्हें पालते हैं, परवरिश करते हैं, तालीम देते हैं, और पाकिस्तान में हमारी बच्चियां, क्रिश्चियन बच्चियां जो है, बच्चों से ज्यादा पढ़ी लिखी है। आप एग्री है मेरे से? हमारे बच्चों से ज्यादा पढ़ी लिखी हमारी बेटियां हैं, और जब बेटियां पढ़ लिख जाती हैं, जवान होती हैं, तो हम उन्हें दूसरे घरों में भेज देते हैं। क्या वजह है? क्या यह जरूरी है कि उनको उनके घर में भेजना है? क्या बाइबल मुकद्दस क्या इसकी इजाजत देती है? कहीं बाइबल में कोई आयत ऐसी है जहां पर लिखा है कि नहीं जी बेटियों को घरों से निकाल के दूसरे घरों में भेज दो, और वहां पर जाकर वो सास और फिर नंदों और फिर देवरों और फिर उनकी नौकरियां करें? मुझे पिछले दिनों में किसी शख्स ने कहा जी मैं शादी करना चाहता हूं। क्यों शादी करना चाहता हूं? शादी मैं जी इसलिए करना चाहता हूं, मेरे कपड़े इस्त्री करने वाली कोई नहीं, भांडे धोने वाली कोई नहीं, मेरे घर खलारा पिया रहता है, मैं शादी करना चाहना। तो मैं उन्होंने आख्या कि कुरानी लाया, बीवी ने बेहतर मैंने कुरानी लाया है कि कम से कम काम। नहीं बीवी ठीक है जी। तो बीवी सोच ये है कि हम इतना बच्चियों को पढ़ा देते हैं, पढ़ने लिखने के बाद दूसरे घर में जाके वो अगले बंदे जो जी मत वज जाती है। दूसरे घरों में जब जाती है, हमने उनका स्टेटस अपने अपने खानदानों में कैसा रखा, और फिर जब दूसरे घर में जाती है उनका फर्क हो जाता है। क्या वजह है कि सिर्फ बच्चियां ही हैं, बेटियां ही हैं जिनको हमने घरों से निकालना और कहना कि चलो जो सास जैसे सलूक करे, ससुर जैसा सलूक करे, जैसा तेरे साथ सलूक होता है। और फिर पहले तो ये कहावत भी थी, बल्कि आज भी ये कहावत है कि तेरी डोली उठी है जनाजा ही आए। ये थी कहावत, है कहावत अभी भी। क्या बाइबल इजाजत देती है ऐसा? सवाल आपसे कर रहा हूं मैं। खामोश ना बैठे, मेरे साथ रहिए। अगर खामोश बैठे रहते चार आ जाएगी जल्दी। क्या बाइबल इजाजत देती है कि हम अपनी बच्चियों को ही सिर्फ कुर्बान करें? जी, बाइबल बताती है, जो पहला असूल बाइबल के अंदर मैंने अभी आपके सामने रखा, पैदाइश की किताब 2 बाब 24वीं आयत, मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा और मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा और यकीन जानो मैं सामने आपके खड़ा हूं, चंद खवातीन ने थोड़ी सी ऊंची आवाज निकाली है, मर्दा की आवाज नहीं जो निकली। मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा और जिन्हां दी बीवियां ने वो बोलणगे, मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा और कितनों पर यह आयत ठीक आती है? हमारे घरानों में कितनों पर यह आयत, कितनों ने इस आयत पर अमल किया है कि अपने मां बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। यहां तो बेटियां अपने मां बाप को छोड़ती हैं और जाकर अपने शौहर को मिल जाती है। साडे उल्टी आयत है। बाइबल में आयत है मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से। यहां यह है कि बीवी अपने मां बाप को छोड़ेगी और अपने मर्द से मिली रहेगी। हमने तो पाकिस्तान के अंदर अपनी आयत आजाद की हुई है। क्या मतलब है इसका? मैं आपसे मतलब पूछना चाह रहा हूं। आपने देखिए, हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारी उम्र है, कोई यंग जोड़े हैं, या मां बाप को छोड़ने का क्या मतलब है कि वो मां बाप को छोड़ देगा और सिर्फ बीवी के साथ रहेगा, सिर्फ बीवी के साथ मिला रहेगा? जी यहां आए, सामने आए, ये माइक आपके पास पड़ा है, ये सब कुछ आप ही का है। आए जी, वो माइक पड़ा है। हम सवाल ये सुन ले, पहले एक मिनट, सवाल जरा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि हर जवाब देने वाला दे सके। हम अपनी बेटियों को ब्याहकार लोगों के घरों में, दूसरे घरों में भेजते हैं कि यहां वो रहेगी और ये इसका शोहर है, ठीक है? जबकि बाइबल में लिखा है मर्द अपने मां बाप से अलग होगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। जी,
कलाम की रूह से, कलाम के जिंदा कलाम से हमें कुव्वत और ताकत मिलती है कि खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और खुदा ने उस पर गहरी नींद भेजी, और खुदा ने उसकी पसली से एक औरत पैदा की और वो आदम को दी, इसलिए कि आदम के लिए औरत बनाई गई है, ना कि औरत के लिए आदमी बनाया है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। सवाल फिर सुन लीजिए, बेटियां ही घर छोड़कर क्यों जाती हैं? मर्द के साथ रहेंगी वो, और वो दोनों एक तन होंगे, बेटे क्यों नहीं? जबकि बाइबल का फरमान क्या है? आयत पढ़ें, बाइबल में क्या लिखा है? पास, आगे पढ़े, बताएं मुझे। पास, मैंने पहला लफ्ज बोला, पास मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा और अपनी, तो यहां हम क्या करते हैं? बस लड़की अपने मां बाप को छोड़ेगी और अपने शोहर से मिली रहेगी, तो सारी उम्र उन्होंने खिदमत करेगी। जवाब चाहिए मुझे, सोच कोई, ख्याल कोई। सब जोड़े हैं, सब अहले खाना है, सब घर वाले हैं, मसीही हैं, जवाब दीजिए। उसकी वजह यह है कि जैसे हमने पहले पढ़ा कि आदम की पसली से औरत को निकाला गया, और वो पसली उसी शोहर की थी जिसके पास गई। इस वजह से जो माँ बाप है, ये आसमान पर खुदावन ने जोड़े बनाया, और वो लड़की इसलिए उस लड़के को सौंपी जाती है। कोई जवाब और? क्या मुतमिन है जवाब से? मुझे पता है आपके अंदर जो कुछ चल रहा है, आपके अंदर बहुत मुख्तलिफ सोचें चल रही हैं, लेकिन आप जवाब नहीं दे पा रहे। जवाब इसलिए दे नहीं पा रहे कि मां बाप की कहीं इंसल्ट ना हो जाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है तो अपने मां बाप की, दुनिया में सबसे मुकद्दम एहसास कौन सा रिश्ता है? बुलंद आवाज से, कौन सा रिश्ता है? किस आयत में लिखा है कि मां बाप का रिश्ता है? बताइए, पूरी बाइबल आपके पास है, किस आयत में लिखा है कि मां बाप का रिश्ता है? खुदा ने मां बाप पहले पैदा ही नहीं किए, सुन ले। मां बाप पहले पैदा नहीं खुदा ने किए, सुन ले। पहले खुदा ने पैदा क्या किया? जब बुलंद आवाज से बोले, पहले पैदा क्या किया खुदा ने? क्या किया? पहले मियां बीवी पैदा किए, फिर मां बाप पैदा किए। मैं अपने को पल्ले बाइबल नहीं पढ़ के सुना रहा। मर्द और औरत को पहले खड़ा किया और कहा भरो, फलो, फूलो और जमीन को मामूरो माकूम करो, फिर उनके घर काहिन और हाबल पैदा हुए, फिर वो मां बाप बने। पहले क्या थे? तो रिश्ता ये है हसास सबसे। मां नूं जिन्नियां मर्जी गाला काट लो, फिर सीने नाल ला लैंदी जे। जितना मर्जी उससे सता ले, तंग कर ले बाप को, फिर वो प्रॉब्लम हल हो जाते हैं। इतने प्रॉब्लम कई बार बनते नहीं। खुदा ने सबसे जो अव्वल रिश्ता बनाया, पहला रिश्ता जमीन पर बनाया, मां बाप का नहीं बनाया। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, मैं बाइबल से कह रहा हूं। मुश्किल आपके लिए बहुत हो रहा है मेरी बातें सुनना, ज़हनी तौर पर आप बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं मुझे सुनकर, लेकिन हकीकत ये है कि खुदा ने पहला रिश्ता जो बनाया वो मां बाप का नहीं बनाया, बल्कि अब कहा, अब मियां बीवी क्या करे? अब मर्द और औरत क्या करेंगे? अब मर्द अपने मां बाप को, मैं साथ ही मुश्किल तो बात नहीं कर रहा, लेकिन आपके लिए मुश्किल बनी पड़ी है कि मैं हुनी ये तो कोई ऐसी गल की थी दिल के सस तक मेरी खबर पहुंच गई, तो मेरी खबर वो नहीं लेनी है, फिर आज नहीं लेगी खबर, में अगली बातें जो वो क्लियर हो जाएगी, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। बस मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा। अब इसका मतलब समझिए, जब एक हमारी सोसाइटी फर्क है, हमारा कल्चर फर्क है, हम फर्क मुआशरे के अंदर है। हम ये समझते हैं कि शादी होते ही एक घर से वो निकलती है, पहले बाप भाइयों के उसके ऊपर तसल्लुत होता है लड़की को, फिर वहां से निकलती है दूसरे घर में आता है देवर, सास, जेठ, सौरा, सारे प्रेशर। अब
दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर क्या होता है, शादी होती है, खानदान मियां बीवी यहां, जब उनकी औलाद हुई उनके मियां बीवी यहां, कोई प्रॉब्लम नहीं घर के अंदर अपना तौर पर। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा, अपनी बीवी से मिला रहेगा, और दूसरी जानिब लिखा है तू अपने मां बाप की क्या कर, इज्जत कर। और आते ही सारों पहला कानून जरा बनाता मर्द, तू मेरे मां प्यो की इज्जत ना की तो पूछ लांगा मैं तेन। और आते ही पूरी डिटेल्ड बताते हैं तू फलाने ने इंज सलूक करना है, फलाने ने ऐ करना है, फलाने ने ऐ करना है, फलाने ने ऐ करना है। उन्होंने बेचारे ने एक पूरा चार्ट बना के दिता जाता है, और सारी उम्र प्रेशर च रह रह के जिंदगी गुजारती है। और ये शादी के दूसरे तीसरे दिन ही काम शुरू हो जाता है। बाइबल बताती है कि बस मर्द क्या करेगा, अपने मां बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से होता क्या, तोजह फरमाइए। होता ये है, मैंने पहले बताया कि जब शादी हो जाती है, शादी होने के फौरन बाद पहला काम क्या होता है, जनाब दूल्हा बड़ा खुश है, पहले वो सीधा डायरेक्ट घर आता था, हाथ में फ्रूट पकड़ा, चीजें पकड़िया, सीधा अपनी मां को जाता सी। होनो कितने टुर पे देखिए, पहले वो अपनी तनख्वाह लाके किसके हाथ में रखता था, जब मैं साथ रही, पहले वो तनख्वाह किसको देता था, पहले वो फ्रूट किसको देता था, चीजें किसको देता था, अब वो किसको दे रहा है, तो मां की कहती है, अब बोलो मां की कहती है, लै रन मरीद बन गया जे, बुढ़ी थले लग गया जे, शर्म ही नहीं होती। अगर सोचे फरमाइए, अगर वो सीधा मां को सीधा फ्रूट लेके जाता है तो इन्ना जड़ा मुंह बना के बैठे, मैं कद लिए इतने आओ, वो बेचारा मुझकार फंस आया। बस मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा, ना मां बाप को छड्डन जोगा, ना बीवी ना मिलन जोगा। इधर जाए बीवी के प्रॉब्लम, उधर जाए मां के प्रॉब्लम। और यकीन जाने बहुत से खानदानों के अंदर मर्द जो है बीमारी सबब से होते हैं, मन्ना मैं किदी, मैं बीवी दी मन्ना या मां दी मन्ना। बीवी की माने तो मां, भाई, बहने, भाभिये, सानू तो पहला पता सी तू इंज ही होना है, हुण दे आके सारिया चीजां नहीं, ये तू पेके भार होना। उस लड़के को इतों ताने ताने कि तू ये थले लगे, लड़की को फर्क, हाँ तेरे को तेनों जो मिलता तू पेके ही भरेंगी अपने। वो बेचारी पेके का मुंह भी ना भावे वेख्या हो, साल हाँ साल ना वेख्या हो। और इस डिस्टर्बेंस के अंदर, इस प्रॉब्लम के अंदर इतना ज़हनी इंतशार होता है कि आज बहुत से मर्द बीमारी का सबब ही ये बना हुआ है। आए दिन की होया जी, बंदे ब्लड प्रेशर हाई होया, ब्लड प्रेशर कर ली, पता नहीं जी की होया। मां नूं पूछी की होया, नूं पता नहीं है, बहुटी ने कुछ आख्या, तो जो बहुटी नूं पूछी तो मां ने कुछ आख्या, वो बंदा उंज ही शुगर का पेशेंट, ब्लड प्रेशर का पेशेंट होकर मर जाता है। लेकिन बाइबल असूल बताती है, पहला असूल, बस मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। बाइबल हमें यह बताती है कि पहला रिश्ता खुदा ने मियां बीवी का बनाया, फिर मां बाप का। जब आपकी शादी हो जाती है तो आपके लिए मां बाप इज्जत का दर्जा रखते हैं, दिलो जान से उनकी इज्जत करें, उनके आगे उफ तक ना करें। लेकिन बीवी आपका जिस्म है, मां बाप इज्जत के लायक है, बीवी आपका जिस्म है। अब मुझे बताएं, दोनों ने मिलकर, ये जिस्म ने इज्जत करनी है, तुम दोनों एक तन हो। और एक तन होने का मतलब यह है कि मियां बीवी आपस के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करे और मां बाप की इज्जत करे, मां बाप की इज्जत करे। और कई मर्तबा खानदान इसलिए तबाह हो जाते हैं कि अंदर ऐसी, दोनों मियां बीवी के अंदर ऐसी बातें डाल देता है खानदान, वो कुछ आगे कहता है, वो कुछ आगे कहता है, और ऐसे प्रॉब्लम बनते हैं कि चंद महीनों के अंदर वो तलाक तक बात पहुंच जाती है। और मां ही कहती है इन्हें तलाक दे, इन्हें तलाक दे, इन्हें तलाक दे, और बात तलाक तक पहुंच जाती है। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है, बस मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। दूसरी बात, अपनी बीवी से मिला रहेगा। और तीसरी बात, जो तीसरा नुक्ता है, हर रोज हमारी डिस्कशन होती है, गुफ्तगू होती है, तो मैंने एक चीज लिखी है कि मियां बीवी जब भी गुफ्तगू करे, नरम लहजे में गुफ्तगू करे।
जब भी मियां बीवी गुफ्तगू करते हैं, तीसरी बात, पहली बात वो अपने मां बाप को छोड़ेगा। छोड़ने का मतलब यह नहीं है उन्होंने घरों काट देना। छोड़ने का मतलब यह है कि मां बाप को मां बाप के दर्जे पर रखे और बीवी को बीवी। मां बाप आपकी इज्जत के लायक है, बीवी आपका जिस्म है, बीवी आपका तन है, बीवी आप और बीवी एक है। मां बाप को इज्जत जरूर करे लेकिन बीवी के साथ हमेशा मिले रहे। तीसरी बात, जब गुफ्तगू करते हैं तो नरम मिजाज होकर गुफ्तगू करें। यहां एक मैं हवाला आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, मेरे साथ निकाल सकते हैं आप बाइबल मुकद्दस में से, ज़बूर 19 उसकी 14 आयत। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। हमेशा जब भी हम आपस में गुफ्तगू करते हैं नरम लहजे में, कई मरतबा यहां अभी कुछ लोग आए हैं और उन्होंने आके कहा जी हमारा झगड़ा नहीं हुआ। क्यों? झगड़ा इसलिए नहीं हुआ कि अगर मैं ऊंचा बोलती हूं तो मेरा शोहर जो है वो खामोश रहता है, और अगर मेरा शोहर ऊंचा बोलता है तो मैं थोड़ा खामोश हो जाती हूं। सो हम नरम मिजाज होकर इस मामले को हल कर लेते हैं। सो तीसरा जो कामयाब शादी शुदा जिंदगी का असूल है वो ये है कि हम कोशिश करें एक दूसरे की बर्दाश्त, और एक दूसरे की बर्दाश्त इसी में है कि हम खानदानों को बिखरना ना दें, टूटने ना दें। हमारे लफ्ज जो है, हमारे अल्फाज जो है, ताने जो है, वो हमें कई मरतबा बहुत आगे ले जाते हैं। मैं यहां एक सवाल करना चाहता हूं, कितने मर्द हैं जिन्हें कभी गुस्सा आता है अपनी बीवी पे? मैं तो करता हूं। मैं ऐसे ही पहले अपने आप नहीं होना, मैं करता हूं। आपका झगड़ा भी होता है, थैंक यू। मैं वैसे कह रहा हूं कि आप इस शल से बाहर आए कि आप शादीशुदा जिंदगी में मैंने गुस्से ना देखो, ये तो बाहर आइए। हम अक्सर गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है। हमारे झगड़े भी होते हैं छोटी छोटी बातों में। बाइबल मुकद्दस गुस्से की बाबत क्या कहती है? गुस्सा करो। तो इसका मतलब है मर्द और औरत अगर गुस्सा करते तो कभी नवी गल है। अच्छा मुझे यह बताएं, गुस्सा जो है ये फितरती अमल है? गुस्सा आता है कि नहीं आता जी? गुस्सा आता है। कितने हैं जिसे गुस्सा कभी नहीं आया? फिर अपने खून के टेस्ट कराओ जी सारे। जिसके अंदर खून है उसमें गुस्सा आएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? गुस्सा करो। तो जिदा अगली गल बाद च करांगे। गुस्सा करो, और जिन्हें गुस्सा नहीं होता टेस्ट कराए क्यों नहीं होता? यीशु मसीह का हुक्म है गुस्सा करो। तो जब मियां बीवी आपस में बात करें कुछ गुस्सा भी होएगा। लेकिन अगली बात क्या है? यह गुस्सा करने का क्या मतलब है? हम अपनी बीवी पे गुस्से हो सकते हैं, बीवी शौहर पे गुस्से हो सकती है, वाजिब है। मियां बीवी ना गुस्सा वाजिब है कि नहीं है? अगर कोई आंदा ना कि मियां बीवी गुस्सा ना करे तो मैं उसकी नफी करता हूं। कम से कम मियां बीवी गुस्सा करे, मियां बीवी गुस्सा करे। गुस्सा करने से मोहब्बत ज्यादा बढ़ती है। आप मुश्किल हो रही है आपको, गुस्सा करने से मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन आगे क्या लिखा है? गुनाह। और फिर एक और बात लिखी है, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी खफगी कितनी देर तक होनी चाहिए? तुम्हारी खफगी होनी कितनी देर तक चाहिए? सूरज गुरूब होने तक तुम्हारी खफगी क्या हो जानी चाहिए? ते लड़ाई मियां बीवी दी होंदी कदों? बेचारा शाम नूं ते घर हुंदा है। बंदा शाम नूं घर हुंदा ते इन्हां दी लड़ाई कदों शुरू होंदी है? सूरज डुब्बन तो। ये नरम मिजाज किथे रहे? अक्सर मियां बीवी की लड़ाई कईयां दी सवेरे सवेरे शुरू हो जाती है ते कईयां दी सूरज डुब्बन तो बाद होती है शुरू। ये नेचुरल अमल है। कई खानदानां च की होंदा, सुबह उठते ही एक राउंड शुरू होता है लड़ाई का। कई खानदानों में शाम को राउंड शुरू हो जाता है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा। गुस्सा आना फितरती अमल है। मैंने आपको बताया गुस्सा आना फितरती अमल है। यीशु मसीह ने भी कहा है गुस्सा करो, और ये मैं समझता हूं मसीह ने चंगा क्या हुक्म देता सानू गुस्सा करने का। गुस्सा करो, आगे हुक्म के आगे कैंची रख दी। पर गुनाह, वो केड़ा गुस्सा जिसमें गुनाह नहीं होता? वो कौन सा गुस्सा है जिसमें फिर गुनाह नहीं होता? गुस्सा आएगा, गुनाह होगा। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं इस गुस्से पे कंट्रोल करो। जब मियां बीवी आपस में बात करे तो मेहरबानी करके जी एक मर्दा वाली शक्ल होती है, मैं बस मेरे च ही आकड़े बहुत,
उस वक्त को याद करें जब आपकी शादी नहीं हुई थी, तब आप इस तरह बात करते थे। नहीं, शादी से पहले जब मंगनी हुई थी, मंगनी तो टेलीफोन होते सन, कभी आज चले आपका कई लोग हैं जिनका जमाने में टेलीफोन नहीं था, वो मोबाइल नहीं था, SMS नहीं थे, ईमेल्स नहीं थे, लेकिन चलो लेटर तो होते सन ना, चले वही वक्त याद कर ले, इंज गल्ला करने सन। अब जब हमारे 5-6 बच्चे हो गए हैं तो हमारी बातें ही फर्क हो गई है। सो बाइबल बताती है कि हम अपने मुंह के कलाम को कंट्रोल करें और नरम मिजाज अपनी अहलिया और अपने शोहर के साथ रखें। जब नरम मिजाज में हम बातें करेंगे तो कभी खानदान नहीं टूटने पाएंगे। रोजाना जो आप काम काज करते हैं वो मसीह की खातिर करें, और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि मसीह की खातिर काम काज करने में मुश्किल नहीं है। वक्त इतना नहीं है कि मैं आगे बढ़ सकूं, मैं सिर्फ 2-3 बातें आपसे करना चाहूंगा। रोजाना कामकाज में कई मर्तबा हम ये समझते हैं कि जो मर्द है ना, इसने तो कोई कख पन के दूर ही नहीं करना। वजह, सुबह जाता है ड्यूटी पे, शाम को आता है, आंधी रो पाना मैं थकिया पर मैं लेटा लगा हुआ, वीकेंड है, छुट्टी का टाइम है, कोई काम नहीं। बीवी को कितने वीकेंड मिलते हैं? बीवी के पास कितने वीकेंड होते हैं? उसकी कितनी ऑफ होती है, ड्यूटीज नहीं होती जब उसकी? मर्द कितने दिन काम करता है मर्द? हाँ, कितने घंटे? अच्छा, कितने घंटे? 8 घंटे काम करता है। कितने दिन काम करता है? 6 दिन। कई जगहों पर सैटरडे संडे छुट्टी होती है कि संडे को काम नहीं करना, सैटरडे को काम नहीं करना, आराम ना करना। औरत को कितनी छुट्टियां होती है घर में? हाँ जी, औरत को कितनी छुट्टी होती है? तो जिस दिन छुट्टी मर्द ਨੂੰ ਹੋਵੇ उस दिन औरत का की हाल हो रहा होता, बेचारे ਨੂੰ वक्त पे आता, बंदा घर है, हर काम ही होना है, इतना ज्यादा खिलाना पा के रखे होते हैं, उससे ज्यादा काम उसकी बेचारी के लिए। तो वो अगर काम नहीं करेगी तो आकर के कहेगा मैं काम करना वा, जो छुट्टी होगी तो की हो गया। तो वो बेचारी हर रोज ही काम करती, उसकी छुट्टी ही कोई नहीं। सुबह कितने बजे उठती है खवातीन? 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, और फिर सोती उस वक्त है जो सारे सो जाते हैं। तो बाइबल बताती है कि जो काम हम करें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, कई मर्तबा हम सिर्फ समझते हैं कि बीवी का ही काम है सारा काम करना, लेकिन मर्द औरत का हाथ बिठा सकता है, दोनों मिलकर काम करें। जो कुछ करें खुदा के लिए करें, और जब खुदा के लिए करेंगे समझकर कि जी मैं अपने खानदान के लिए काम करती हूं, वो सारा दिन करता है तो मैं भी करती हूं, तो मेरा ख्याल है कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और कब हमारी जिंदगी खुशगवार जिंदगी होगी। आप अपने मकासद जो है वो अच्छे रखें, अच्छे मकासद के लिए। और आखिरी बात मैं आपसे करूंगा, ऐसी मोहब्बत रखें अपनी बीवी से और बीवी अपने शोहर से जैसे मसीह के साथ। बाइबल मुकद्दस में इफिसियों खत में लिखा है, ऐ बीवियों अपने शोहरों से मोहब्बत रखो। और शोहरों से क्या कहा गया? कहा गया कि ऐ शोहरों अपनी बीवियों से ऐसी मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की और उसके लिए अपनी जान। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ बीवी ਲਈ जान देना चाहना वा, अगर नहीं मेरा ब्याह होगा तो मैं जान दे दूंगा। यीशु मसीह ने शादी से पहले जान देने के लिए नहीं कहा, शादी के बाद कहा दो। अगर सुनिए, जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की और अपनी जान दे दी, किसके लिए? अपनी दुल्हन के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। सो मर्द जो है, मर्द के लिए खुदा ने मियां बीवी के लिए यह कहा है कि एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से। आखिरी बात, एक दूसरे को मुआफ करो। आखिरी बात यह है, एक दूसरे को मुआफ करो। और मुआफी यह है, कई मर्तबा मर्द जो है वो समझता है कि मैं मुआफी नहीं मांगनी, हमेशा औरत को फोर्स करता है कि तू ही माफी मांगेगी, मैं कम से कम माफी नहीं मांग सकता तेरे को। खुदा ने शुरू में आदम और हवा को क्या बनाया? दोनों को एक दूसरे की मानद बनाया, एक दूसरे के लिए मददगार बनाया। मर्द को औरत को खड़ा करके दोनों को बरकत दी। अगर मर्द माफी मांग लेगा तो उसकी नाक कटेगी नहीं। पंजाबी फिल्मां तुहानू पता ही है, देखिए ने, उन्हें कहना पंजाब का जट बैठे होने, कोई मसला ही नहीं। बीवी को
ذرا نیوی آواز نہ بیوی نے گل کر لی سمجھ لیا بیوی سے لگ گیا نہیں، اس سے ایسا نہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے تمہارا غصہ سورج ڈوبنے سے پہلے تمہاری ناراضگی ختم ہو جائے، اور ہمیشہ ہمارے معاشرے کے اندر عورتیں ناراضگی ختم کرتی ہیں موسٹلی، اور معافی کئی مرتبہ مانگتے جناب میں نے معاف کر دو، آج تو بات نہیں ہوئے گا۔ کیا کبھی مرد نے عورت سے معافی مانگی ہے؟ حالانکہ وہ ہمارا جسم ہے، ہم میں سے ہے، خدا نے دونوں کو برکت دی ہے۔ آخری بات میں آپ سے یہ کروں گا، اپنے غلطیوں پر ایک دوسرے سے معافی مانگ لیا کریں۔ جس دن آپ اپنی غلطی پر ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں گے، کبھی آپ کی ازدواجی زندگی میں پرابلم نہیں آئے گی، کبھی ازدواجی زندگی میں۔ تو یہ 7 بڑی باتیں ہیں جس سے ہم اپنی خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں، جس سے ہم بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ کبھی ہمارے خاندانوں کے اندر پرابلم نہیں ہوگا اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں اور شکر گزاری کریں گے، ان باتوں پر غور کریں گے کہ خدا نے ہمیں اکیلا نہیں رہنے دیا، خدا نے ہمیں مددگار دیا، خدا نے ہمیں تحفہ دیا، خدا نے ہمیں یہ اس لائق بنایا کہ ہم زندگی گزار سکے، خدا نے ہمیں محبت کے لیے پیار کے بندھن میں باندھا۔ آئیے اپنا ہر کام اچھے مقصد کے لیے کریں، نیک مقصد کے لیے کریں، اپنے خاندانوں کے اندر معافی کا جذبہ رکھیں، اپنی بیوی کے ساتھ ملے رہے اور کبھی اس سے جدا نہ ہو، کیونکہ خدا طلاق سے بیزار ہے، خدا گواہ ہے آپ لوگوں کا، خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے اور خاندانی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ خداوند ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس سارے سیشن کے لیے جو تم نے ہماری زندگی میں بخشا، ہم سبوں کو برکت دے تاکہ ہم تیرے نام کو جلال دے، مسیح کے وسیلہ سے۔